Class, next we talk about cell mediated immune system. As you know that acquired immune system consists of B and T lymphocyte, and these B and T lymphocyte, they are formed in bone marrow from the pluripotent cells. And you know one word that is called hemopoiesis. Hemopoiesis is formation of blood, and formation of these lymphocytes is called hematopoiesis. That is hematopoiesis, that is the formation of B and T lymphocyte. If we talk about the T lymphocyte, they are processed in thymus. Then what is the function of T lymphocyte? They are having the two functions. First, they help in killing the cells, and they also help in regulation. There are two type of function: effector function and regulatory function. Effector and regulatory function. First we talk about the T cell, which are called helper T cells. Helper T cells, they are most abundant cells. Secondly, helper T cells, they produce growth factor. They produce growth factor. This growth factor stimulate the B cells so that these B cells, they get differentiated into plasma cells and memory cells. These are the function of helper T cell, which are most abundant T cell. They produce a growth factor, and this growth factor stimulate the B cell or B lymphocyte so that they get differentiate and divide and differentiate to produce plasma cell and memory cell. Next is cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells, these are also called killer T cells. This is the diagram of killer T cells. These are antigen binding sites, which I am drawing. These sites are antigen binding sites. Suppose this is the foreign cell, and in this foreign cell, these are the antigens which are present. These are antigens present in the foreign cells. And this cytotoxic T cell, it binds with these antigens. इन एंटीजन के साथ ये बाइंड कर जाएगी, क्योंकि इसकी सरफेस पे भी एंटीजन प्रेजेंट हैं. दीज आर एंटीजन बाइंडिंग्स है. एंड लार्ज नंबर ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, काफ़ी सारी साइटोटॉक्सिक टी सेल आ गई हैं जो इसके साथ बाइंड कर रही हैं. जैसे ही इसके साथ बाइंड करेंगी, इनकी एंटीजन स्पेसिफिक साइट बाइंड विद द एंटीजन साइट ऑफ दिस इज द foreign cell, and these are the antigen present on the foreign cell. जैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड करी, इंटरसेलर फ्लूइड इन सेल के अंदर आना शुरू होगा. दिस इज इंटरसेलर फ्लूइड. Next we talk about these cells, cytotoxic cell, they also release some fluid into this foreign cell. Due to all this, there is swelling of the foreign cell and at last bursting of the foreign cell. In this way, they kill the foreign cell. That may be the microbe, that may be the virus, that may be the cancer cell. Then third is memory cell. What are the memory cell? These are the cells which are formed after the first encounter with
वायरस और बैक्टीरिया से जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो ये सेल फॉर्म हुई। ये सेल ब्लड में रहेंगी और लाइफ लॉन्ग रहेंगी, और इनमें एबिलिटी है कि लाइफ लॉन्ग ये उस बैक्टीरिया या वायरस को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। सेकेंड टाइम जैसे वो बैक्टीरिया या वायरस आएगा, these cell identify that bacteria and virus and kill that bacteria and virus, उस बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर देंगी। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में भी इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है। देन दीज मेमोरी सेल they can change into helper T cell, cytotoxic T cell and suppressor cell. नेक्स्ट इज सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर होता है जो कि किसी भी टी सेल की एक्टिविटी को खत्म कर सकती हैं। इनको रेगुलेटरी सेल भी बोलते हैं। जब इन सेल को लगता है देयर इज नो नीड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, देन दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ टी सेल by switching off the system. This is all about the T cell. Next we talk about what is primary immunity and what is secondary immunity, or primary immune response and secondary immune response. First is primary response. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा जैसे ही एंटीजन ने बॉडी में एंटर किया, एंट्री ऑफ एंटीजन इन द बॉडी, बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द इन्वेजन ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी नंबर ऑफ एंटीबॉडी इज वेरी लेस इन द ब्लड। जब सबसे पहले एंटीजन अंदर जा रहा है तो शुरू के कुछ दिनों में एंटीबॉडी का अमाउंट कम होगा, उसके बाद एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, देन एक बार बढ़ेगा और फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। सेकेंड रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हम बूस्टर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब एंटीजन बॉडी में गया, एंटीबॉडी नहीं थी, बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाई। अब वो एंटीबॉडी एज अ मेमोरी सेल बॉडी में स्टोर हो गई हैं। जैसे ही सेकेंड टाइम सेम एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, दैट में भी बैक्टीरिया और वायरस, तो ये जो एंटीबॉडी बनी है ये क्विक रिस्पॉन्स शो करेंगी। जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज वेरी क्विक एज कंपेयर टू द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो कई बार कुछ वैक्सीन्स में, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, फर्स्ट डोज होती है, सेकेंड डोज, उसको बूस्टर डोज भी कहते हैं क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। सेम इज हियर, सेकेंड एक्सपोजर टू द एंटीजन boost up the immune system, increasing the number of antibody produced, because now in the body antibodies are present in the form of memory cell which can recognize the invading microorganism. This is the second response. Then we talk about active and passive immunity. Active immunity, if we talk about a newborn baby that is not immune at all, उसमें इम्यूनिटी होती ही नहीं है। केवल अगर बात करें उसमें एक डिस्टेम्पर डिजीज है जिसके लिए इम्यूनिटी होती है, एंड दिस डिजीज इज फैटल टू द डॉग। इफ वी टॉक अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की अपनी सेल ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही हैं, इसके लिए वैक्सीन लगवाने शुरू किए जाते हैं, एंड दीज वैक्सीन दे प्रोड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है बीसीजी का वैक्सीन लगता है। बीसीजी का वैक्सीन इट इज अगेंस्ट द डिजीज ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। फिर टैब, ये होता है टाइफाइड के लिए।
BCG में लाइव ऑर्गेनिज्म डालते हैं, लाइव बैक्टीरिया। बॉडी उनको आइडेंटिफाई करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है। जैसे ही टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया बॉडी में जाता है तो बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल हैं, वो इसको आइडेंटिफाई करती हैं और इसके साथ एनकाउंटर करती हैं और इसको ख़त्म कर देती हैं। सेम इज़ द टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन में किल माइक्रोब डालते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम इनके प्रेजेंस में एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा और वो एंटीबॉडी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। जैसे ही टाइफाइड का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आता है, दे कैन आइडेंटिफाई द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म and neutralize the symptom, but this typhoid vaccine it can work for 3 years only। ये तो बैक्टीरियल डिजीज के हैं, बैक्टीरियल डिजीज के वैक्सीन बहुत कम होते हैं। वायरल डिजीज के फॉर एग्जांपल सेबिन वैक्सीन फॉर पोलियो, साक वैक्सीन इट इज ऑल्सो फॉर पोलियो, चिकन पॉक्स वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये आपने बहुत सारे पढ़े हैं। तो ये सब एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी से आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। व्हाट इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी? If we talk about a newborn baby that has already received immunoglobulin G from the mother placenta, ऑलरेडी बर्थ से पहले उसको ये एंटीबॉडी मिल जाती हैं और बर्थ के बाद he or she got the immunoglobulin A from the mother milk, that is the first milk called colostrum। इसके बाद पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल की बात करते हैं। अब एक हम बात कर रहे हैं यहाँ डीपीटी वैक्सीन की, एक्टिव में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। इस वैक्सीन की 2 या 3 डोज लगती हैं बच्चे को। तो ये जो वैक्सीन है इसमें अगर टेटनस की बात करें, यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब बॉडी में एंटीबॉडी स्टोर हो गई हैं। अगर टेटनस का ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। कई बार चोट लग जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। यहाँ ये फर्क है, दिस इज नॉट द वैक्सीन ऑफ टेटनस। अगर वैक्सीन लगवाया जाए चोट लगने के बाद तो बॉडी टाइम लगाएगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ जब टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं चोट लगने के बाद, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी होती हैं जो कि बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। इन द सेम वे अगेंस्ट द स्नेक विनम, अगर हम स्नेक विनम की बात करें, दैट इज द पॉइजन ऑफ स्नेक। Our body has no system to encounter the poison of snake, so we are given the passive immunization। और इन दोनों की बात करें, टेटनस और स्नेक विनम के लिए जो वैक्सीन बनता है उसके लिए जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हैं दैट कम फ्रॉम द हॉर्स में स्नेक विनम को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें ब्लीडिंग करवाई जाती है। ब्लीडिंग में आपको पता है ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सीरम को अलग कर लेते हैं, सीरम में एंटीबॉडी मिलेंगी, उन एंटीबॉडी को इंजेक्शन फॉर्म में रखते हैं ताकि वो अगर स्नेक पॉइजनिंग हो जाती है, स्नेक बाइट हो जाती है तो उस पेशेंट को दी जा सकें। सेम इज फॉर द टेटनस। Then we talk about H antigen. This is a particular class of antigen. We will discuss it in the topic that is antigen. Next our topic is antigen.
इम्यूनिटी की बात रहेगी इसमें, दैट इज ऑल्सो एक्टिव इम्यूनिटी सम टाइम ए सिंगल अटैक ऑफ डिजीज। अब चिकन पॉक्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगा लें, वैक्सीन लगवाने से जो 15 दिन के लिए डिजीज होती है वो नहीं होगी, आपको आइसोलेट भी नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आपने डिजीज वाले फैक्टर को ख़त्म कर दिया है। या फिर आप अपने को आपको एक्सपोज करते हैं, चिकन पॉक्स चल रही है तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगी, और वो चिकन पॉक्स का एक सिंगल अटैक दैट मे बी फॉर द 15 डेज, आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दैट प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो ये नेचुरल है, कुछ डिजीज का सिंगल अटैक भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ बात करेंगे हम स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स इज द टोटली इरेडिकेट डिजीज, जिसको जड़ से खत्म कर दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स नाम की कोई भी डिजीज एट प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। देन वी टॉक अबाउट एंटीजन। Suppose this is antigen. Antigen is any foreign particle. On the antigen, these are some particular sites. एपिटोप बोलते हैं या एंटीजन डिटर्मिनेंट बोलते हैं इनको। ये आप डिफरेंट टाइप के यहाँ बना सकते हैं। In the next lecture, we will discuss about the structure of antibody. But you should know that this is the structure of antibody. It is in the form of Y shape. These are called epitope or antigen determinant. अब जो antibody है, this is antigen. These are antibody binding site. This antibody, it can bind to टू डिफरेंट एंटीजन डिटर्मिनेंट। और सपोज यहाँ मैं कोई एंटीजन बना रही हूँ, ये इसकी साइड्स हैं, एंटीबॉडी कैन बाइंड टू दीज टू साइड्स। अगर इस केस में एंटीबॉडी दो डिफरेंट साइड्स पे बाइंड कर रही है, दो डिफरेंट सेल, बट दे बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एंटीजन, तो यहाँ एंटीबॉडी क्या कर रही है, एक जैसे एंटीजन को एक्यूमुलेट करने में हेल्प कर रही है ताकि वो आइडेंटिफाई करे। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर न्यूट्रोफिल आएंगी और एंटीजन को फैगोसाइटोसिस से ख़त्म कर देंगी। फिर इसमें हम बात करते हैं एच एंटीजन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप। एच एंटीजन को हम बोल सकते हैं दीज आर द प्रिकर्सर। ये प्रिकर्सर हैं, हर ह्यूमन बीइंग में मिलेंगे, and these can be converted into A antigen, B antigen, and they are responsible for the formation of ABO blood group. फिर एंटीजन की अगर बात करें, एंटीजन में भी कंप्लीट और एंटीजन में भी पार्शियल। कंप्लीट एंटीजन वो है जो कि इम्यून सिस्टम से रिएक्शन दे सकता है। जैसे एंटीजन अंदर गया, बॉडी कंप्लीटली रिएक्ट करेगी, दैट इज द कंप्लीट एंटीजन। पार्शियल एंटीजन को हेप्टेंस भी बोलते हैं। Partial antigen are those which are incapable to produce the complete antigen antibody reaction. They need some macromolecule. जैसे हम एंजाइम की बात करते हैं, एपो एंजाइम अपने आप में इनकम्प्लीट है, उनको कोई मैक्रोमोलिक्यूल या फिर इनऑर्गेनिक आयन चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम बात करते हैं पार्शियल एंटीजन की, जिनको हेप्टेंस बोलते हैं। हेप्टेन अपने आप में इम्यून सिस्टम से रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे। हेप्टेंस नीड द मैक्रोमोलिक्यूल। बाय बाइंडिंग विद मैक्रोमोलिक्यूल दे कैन कंप्लीट द रिएक्शन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। फिर एच एंटीजन के रेफरेंस में एक और बात करते हैं हम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। द पर्सन विच आर हैविंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप, they don't have, or they have anti-A, anti-B and anti-H antibodies, and neither the blood group A, B or O can be transfused into these person which are having Bombay blood group. They can be transfused with the blood of same person which are having Bombay blood group. Then revise it. Next topic is structure of antibody.